The Rat Trap by Selma Lagerlof. Fourth chapter of English prose from Flamingo, and it's a prose. As the title suggests, rat trap. Rat means चूहा and trap means घेरना, फंसाना, जाल में फंसाना. सो चूहे के जाल में फंसाने को लेकर कुछ ये कहानी है, ये स्टोरी है. रैट ट्रैप. द राइटर Selma Lagerlof, born 1858, died 1940, is a Swedish writer. A Swedish writer whose stories have been translated into many languages. World famous writer. And in most of her writings, there is a common theme that surfaces every now and then. And that is a belief that goodness is there in human beings. All humans are good. Essentially, everybody is a good soul. What we need to do is, we need to bring it out. Usko bahar lana. We need to bring it out. And that can be done through understanding and love. That means she believes firmly that human beings as such per se are good. In order to get the best out of them, you need to understand them. You need to understand each other. You need to love each other, have affection for each other, have concern for each other. ये बात जो है उनकी हर राइटिंग में दिखती है सतत रूप से. ये विश्वास कि मनुष्य में अच्छाई निहित है और उस निहित अच्छाई को हम बाहर कैसे ला सकते हैं? बेहतर समझ से और स्नेह से, प्यार से, प्रेम से. इट कैन बी अवेकन्ड. इस कहानी में जो रेड ट्रैप है, इसमें इसका जो पृष्ठभूमि है वो स्वीडन की खानों के बीच है और लोहे के अयस्क, जिसे ओर कहते हैं, उससे भरपूर है. आयरन ओर और खान. So from this story, certain interesting things emerge, and at the same time we understand the geography of that place. वहाँ के इतिहास, गाथाओं आदि के बारे में हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं. We can know quite a lot. इस कहानी को एक परी कथा की शैली में कहा गया है. It is spoken in the form of a fairy tale. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale by the writer. As I said, it's about iron ore. It's about mines and geography and history of that area and legends of that places is widely reflected in the writings of Selma Lagerlof. So with this description now you are very clear कि इस कहानी में कहीं न कहीं ह्यूमन वैल्यूज़ को सामने लाया गया होगा. लेकिन जो वैल्यूज़ हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उसको सामने लाया. इट इज़ ब्रॉट आउट बाय इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. So let's move to the story now, and the story starts with few para 1. We have divided it into certain paragraphs and we go on to para 1 first. I'll be reading out the story almost line by line, simultaneously translating them into Hindi, dealing with the difficult word that you may come across in those lines, and will also give you few examples related to those words, few sentences. ये कहानी को मैं पढ़ते जाऊंगा
अंग्रेजी में और साथ ही साथ उसका हिंदी अनुवाद होगा। और जो कठिन शब्द आ रहे हैं उसके अर्थ बताते हुए इस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या अर्थ है, जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ यूज़ किया गया है। आई विल टेल यू फ्यू अदर मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड एंड एट द एंड क्वेश्चन आंसर। So here we go with para 1. Once upon a time, there was a man who went round selling small rat traps of wire. Once upon a time, there was a man who went round. Rat trap of wire. एक समय, किसी समय, once upon a time मतलब किसी समय. I lived at Bhopal once upon a time. Once upon a time, I was a brilliant story writer, but not anymore. अब नहीं हूँ। So, एक व्यक्ति था जो went round, जो जाता रहता था यहाँ वहाँ, क्या करता था? Selling small rat traps of wire. छोटे तार के बने हुए छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता था। अब रैट ट्रैप क्या है मैंने आपको बताया, जिसमें चूहों को जाल में फंसाया जाता है। आप ये देख सकते हैं रैट ट्रैप, उसके अंदर कुछ चीज़ रख दी जाती है लालच देने के लिए, जिसको खाने के लिए चूहा अंदर घुसता है और जो शटर है एक, वो अपने आप गिर जाता है, बंद हो जाता है और इस प्रकार चूहा जो है वो ट्रैप्ड हो जाता है। द रैट गेट trapped in that rat trap, and normally it is made of wire, thin wire. So he also, this man, made himself at odd moments. ये जब तब बनाते रहता था। He made them, these wire traps, this rat trap, जब तब बनाते रहता था और odd moments में मतलब जब तब। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. अब ये जब बनाता रहता था ऑड समय में, तो ऑड समय में क्यों? क्योंकि वो फ्रॉम द बेगिंग उसको मिलता था। बेग करना मतलब भीख मांगना। वो स्टोर वगैरह जाता था और वहाँ भीख मांगता था, चाहे तारों की भीख, लोहे के तार, या पिंजरा बनाने के लिए जो कुछ ज़रूरत है उन चीज़ों को मांगता था, और या बड़े बड़े फार्म्स में जाता था। So he used to go to different places and go around different shops, different places, beg for those wires and materials, and whenever free, he would make a rat trap and will sell it. But even so, the business was not especially profitable. But even so, इसके बावजूद बेगिंग करने के बावजूद, भीख मांगने के बावजूद, उसका जो धंधा था, बिजनेस माने धंधा, उसको एक खास फायदेमंद नहीं था। नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब फायदेमंद, लाभ होने वाला नहीं था, क्योंकि कीमत या तो बहुत कम थी या बहुत कम बिकता था। रोज रोज कितना लोग रैट ट्रैप खरीदेंगे? So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. He had to resort to मतलब निर्भर होना। To resort to मतलब निर्भर होना। He had to resort to both begging and petty thievery. Petty माने छोटा मोटा। Petty. You talk petty things. It's a very petty matter, being blown out of proportion. It is a very petty matter, being blown out of proportion. So, the author says that कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, और इसलिए उसे बेगिंग के अलावा कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी। थीफ से बना थीव्स, और थीफरी मतलब चोरी। थीवरी, पेटी, छोटी मोटी, डाके नहीं डालता था वो, बड़ा चोर नहीं था, हत्यारा लुटेरा जैसा चोरी नहीं करता था, छोटी मोटी चोरी कर लेता था, जिससे कुछ मिल जाए तो वो अपनी जीविका
चला सके, सो एज टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी आत्मा और अपने शरीर को एक रख सके, जिंदा रख सके। यदि आत्मा है शरीर में तो शरीर जिंदा है। तो अंग्रेजी में टू कीप बॉडी एंड सोल मतलब जिंदा रहना। तो अपने को जिंदा रखने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कभी कभी वो छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था, क्योंकि उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था रैट ट्रैप बनाने में, बेचने में। एक तो रैट ट्रैप के लिए उसको भीख मांगना पड़ता था वायर के लिए। Even so, his clothes were in rags. बेगरी और थीवरी दो काम करता था। उसके बाद भी, even so मतलब उसके बाद भी, even so means उसके बाद भी। To resort to मतलब निर्भर, किसी पर निर्भर होना। I cannot resort to cheating for success in exam. परीक्षा में सफलता के लिए मैं चीटिंग पे निर्भर नहीं होऊंगा, मैं उसकी शरण नहीं ले सकता। यू मस्ट रिजॉर्ट टू डिसिप्लिन वर्ड। रिसॉर्ट टू मतलब किसी पर निर्भर, किसी की सहायता लेना, मदद लेना, उस किसी चीज पर निर्भर होने के लिए। तो इवन सो ही वॉज इन रैक्स। रैक्स मतलब फटे चीथड़े, फटे फुटे कपड़े, उसको बोलते हैं रैक्स। उसी से बना है रैग पिकर। रैग पिकर मतलब कचरा, फटे कपड़े वगैरह बीनने वाला। ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां, युवतियां, महिलाएं जो दिन भर घूम घूम के कचरा इकट्ठा करते हैं, बोरे में लेके जो घूमते हैं, उनको कहते हैं रैग पिकर। सो इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैक्स। उसके जो कपड़े थे वो चीथड़े थे, फटे हुए थे। हिज चीक्स वेयर संकन। उसका जो गाल था वो धंसा हुआ था। चीक मने गाल, और शिन मने ठुड्डी, CHIN, शिन, उच्चारण है शिन, उसका मतलब होता है ठुड्डी। और चीक मने गाल, गाल अंदर धंसे हुए थे। संकन, संकन किससे बना है? सिंक से। टू सिंक माने डूबना, टू सिंक माने गिरावट आना। तो यहाँ पर उसके गाल में भी बहुत गिरावट थी। दे वे संकन चीक्स, कपड़े फटे हुए, गाल धंसे हुए। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आई। टू ग्लीम माने चमकना, और भूख जो थी वो उसकी आंखों से दिखाई देती थी, अर्थात भूखा रहता था बेचारा। ग्लीम मतलब चमकना, आंखें चमकना। यहाँ पर उसका एक भावार्थ है। उसकी आंखें चमकने का अर्थ ये नहीं कि वो बहुत प्रसन्न था। आंखें चमकना मतलब उसके जो भूख थी, हंगर यानी भूख, भूख उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी, उसकी आंखों से दिख रही थी। मानो दया की याचना कर रहा हो, लगातार दया मांग रहा हो, याचना कर रहा हो। फटे हुए कपड़े, धंसे हुए गाल, और पेट पीठ दोनों हैं एक। इतना दुबला कि भूख से अधमरा हो गया हो मानो, ऐसी उसकी स्थिति थी। बेगिंग और थीविंग दोनों काम करने के बावजूद। ये तो हुई रैट ट्रैप का काम करने वाले एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ रैट ट्रैपर और रैट ट्रैप सेलर। Rat trapper means someone who traps the rat, and rat trap seller means someone who sells the rat trap. So here is the seller. Now, no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond मतलब आवारा। Vagabond माने आवारा, घुमक्कड़, घुमक्कड़ व्यक्ति। ही इज अ वैगाबॉन्ड, बड़ा घुमक्कड़ व्यक्ति है। ही डज नॉट स्टे एट वन प्लेस। तो नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितना वह दुखी और कितनी मोनोटोनस, उबाऊ जीवन वो जी रहा था। हाउ लाइफ, जीवन उसका कितना उबाऊ हो गया था, जीवन उसका कितना मोनोटोनस हो गया था। मोनो माने एक, बायो माने दो,
trio माने 3, quadro माने 4. So here and so on. So one mono, monologue, monotheism, mono acting, जिसमें एक ही व्यक्ति नाटक करता है. So here we have monotonous life. Sad and monotonous life. How life can appear so monotonous? कितनी उबाऊ जिंदगी थी उसकी, उस घुमक्कड़ की, और कितनी दुखमय थी. How sad the life was. कोई कल्पना नहीं कर सकता. Who plods along the road? Who means rat trap seller. Plod along the road. To plod माने धीरे धीरे चलना, थका हुआ चलना, पैर को घसीटते हुए चलना. He is plodding, he is not walking, he is plodding. थकान के साथ जो चलते हैं ऐसा वो चलता रहता था, क्योंकि बेचारा एक दुकान से दूसरी दुकान, एक फार्म हाउस से दूसरे फार्म हाउस बैग करने जाता था, और फिर उसके बाद वो बना के उसको बेचने के लिए भी निकलता था. मतलब चलता रहता था, चलते रहता था, और उसका जो जीवन था मोनोटनस हो गया था. एक रूपता, वही करना था, कोई नई बात नहीं थी. Left to his own meditations. Who plods along the road, left to his own meditations. और अपना खुद ही कुछ सोचते रहता था. To meditate मतलब मनन करना, चिंतन करना. To meditate मतलब मनन चिंतन करना. So no one can imagine. It's a very long sentence. कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितना उबाऊ और कितना दुखदाई इसका जीवन था, इस घुमक्कड़ का, जो सड़क पे बस थकान भरी चाल से चलता रहता था और पता नहीं कुछ सोचते रहता था. लेफ्ट टू हिज ओन लेफ्ट, लीव माने छोड़ देना, अपनी ही दुनिया में चला जाता था. कुछ सोचता रहता. क्या करेगा आदमी बेचारा, क्या सोचता था, nobody knows. But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन ये जो आदमी है उसके विचारों में एक क्रम दिखा, एक चीज को सोचने लगा. ए लाइन ऑफ थॉट. फॉलन माने गिरना, टू फॉल माने गिरना, फॉलन इनटू मतलब गिरना, पर फॉलन इनटू का यहाँ अर्थ होगा भावार्थ, उस दिशा में सोचने लगा. फॉलन इनटू मतलब उस दिशा में वो बात का मन में सोचने लगा. किस दिशा में? एक ही कोई बात को लेकर सोचने लगा. One day he had fallen into a line of thought. एक कोई सा विचार उसके मन में आया और उसके बारे में वो लगातार सोचने लगा. Which really seemed to him entertaining. जो उसे बड़ा मजाकिया लग रहा था. वो जो सोच रहा था उसको खुद को लग रहा था कैसा मजाक है, हंसी आ रही थी उसको. एंटरटेनिंग. मेडिटेशन मैंने बताया चिंतन मनन. एंटरटेनिंग मतलब उसको खुद को हंसी आ रही थी अपनी सोच पर वो सोचने लगा उस बात पे. अब सोच क्या थी? He had naturally been thinking of his rat traps. स्वाभाविक है वो रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा होगा. बनाना, बेचना, उसके लिए सामान इकट्ठा करना, ये तो सोच रहा होगा. नेचुरली, स्वाभाविक रूप से वो इसके बारे में तो सोच रहा होगा. When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. जब अचानक उसके मन में ये आया, to strike an idea, एक विचार आना. To strike an idea मतलब एक विचार आना. An idea has struck to him about handling this problem. उसके मन में एक विचार आया है कि समस्या को कैसे हैंडल करूंगा. So here वो जब एक लाइन ऑफ थॉट को सोच रहा था, स्वाभाविक है वो क्या सोच रहा होगा, रैट ट्रैप के बारे में, तार के बारे में, और उसको हंसी भी आ रही थी. तो अचानक उस दौरान उसको एक विचार आया, एंड दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके आसपास की सारी दुनिया
वो दुनिया जिसमें समुद्र है, जिसमें शहर हैं, विलेज है, आदि आदि, जमीन है, इट वॉज नथिंग बट ए रैट ट्रैप। वो दुनिया कुछ नहीं है, इट वॉज नथिंग। ऐसी वो दुनिया जिसके कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं बल्कि एक रैट ट्रैप ही तो है, बट ए रैट ट्रैप। देखिए, उसके मन में विचार आ रहा है, रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा है। पहले पता नहीं कुछ कुछ सोचते रहता था, लेकिन आज जब वो सोच रहा है तो एक लाइन ऑफ थॉट, एक दिशा में सोच रहा है, और सोचते सोचते उसको लगता है अरे ये दुनिया जो है, ये दुनिया तो एक बड़े रैट ट्रैप जैसी ही है, नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. ये जो दुनिया है, ये किसी और चीज के लिए अस्तित्व में थी ही नहीं। टू एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, किसी और चीज के लिए अस्तित्व में तो थी ही नहीं, बल्कि पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट माने लालच, लोभ। किसी को फंसाने के लिए कुछ चीज़ जब बढ़ाते हैं ना, तो उसे बेट कहते हैं। जैसे रैट ट्रैप के अंदर टमाटर या कुछ मीठी चीज़ या घी से लगी रोटी हम लोग लगा देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बेट। मछली के लिए हम क्या करते हैं, जो हम तार जाल फेंकते हैं, उसमें हम आखिरी में एक छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेट, BAIT। तो वो आदमी सोच रहा है, रैट ट्रैप सेल्समैन, कि दुनिया जो है वो भी तो एक बड़ा ट्रैप ही है। इट नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज। वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए तो उसका अस्तित्व था ही नहीं, बल्कि क्या था, सबको लालच देना। अर्थात दुनिया में जो लोग भी हैं वो सब किसी न किसी लालच के लिए हैं, कुछ न कुछ लालच में फंसते हैं, और बेट देना मतलब लालच में फंसते हैं। It never existed for anything but for baits. हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लालच दिया जा रहा है। ये वाक्य को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिलॉसफी है, दर्शन है, और कहानी का जो की व्यू है वो इसी लाइन में है कि द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट ए रैट ट्रैप। It was nothing but a big rat trap, never existed for any other purpose than to set baits for people. लोगों को to set bait, लोगों को लालच दिया जाता है, फुसफुसाया जाता है, फुसलाया जाता है। कैसे? It offers riches, पैसा का लालच दिया जाता है, आमोद प्रमोद का लालच दिया जाता है, शरण का लालच दिया जाता है, भोजन का लालच दिया जाता है, गर्मी ठंड का लालच दिया जाता है, आदि आदि। तो हर आदमी किसी न किसी लालच में फंसा हुआ है, बेट में फंसा हुआ है, और इसलिए ये जो दुनिया है वो क्या है, एक बड़ा रैट ट्रैप ही तो है। और ऐसा सोचते हुए वो खुद ही मन मुस्कुरा रहा है, उसको हंसी आ रही है, बिल्कुल पूरा विश्वास हो रहा है कि ये बेट्स क्या हैं, खाने पीने की चीजें, पैसा, आमोद प्रमोद की चीजें, रिचेज एंड जॉय। रिचेज मतलब धन। एक तो रिच मतलब होता है अमीर, और रिचेज मतलब होता है वेल्थ, धन, वेल्थ। सो रिचेज एंड जॉयज। इट ऑफर्ड शेल्टर माने शरण, एंड फूड। इट ऑफर्ड हीट एंड क्लोथिंग। लोगों को गर्मी देता है। ये गर्मी की बात क्यों आ रही है? ये जो कहानी लिखी गई है स्वीडिश राइटर के द्वारा। Sweden is a very, very cold country because it is close to the North Pole. नॉर्थ पोल के ऊपर है। आप देखेंगे स्वीडन को, फिर से देखिए नक्शे में, नॉर्थ पोल के ऊपर है, और नॉर्थ पोल से लगा हुआ है, ऊपर नहीं, नॉर्थ पोल इसके ऊपर है। तो बहुत ठंड है, तो वहाँ पे किस ढंग का लालच दिया जाता है? गर्मी का लालच। तुमको हम गर्मी देंगे, तुमको हम शरण देंगे, एंड एग्जैक्टली, और कपड़े देंगे। और ये लालच कैसा है? द रैट ट्रैप सेलर थिंग्स इट इज एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क।
चीज़ समझते हैं ना, एक तरह का मक्खन, और पोर्क माने सुअर का मांस। वो पश्चिमी देशों में पोर्क खाते हैं ज़्यादा, सुअर के मांस को ज़्यादा खाते हैं। वहाँ सुअर को पालते हैं और उसको खाते हैं, उसे कहते हैं पोर्क। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि रैट ट्रैप को हम सुअर का मांस ऑफ़र करते हैं, चीज़ ऑफ़र करते हैं, वहाँ पर यही चीज़ लगाई जाती होगी रैट ट्रैप में। ऑफ़र करना मतलब किसी के सामने रखना। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him. और जैसे ही anyone let himself be tempted, कोई भी इस लालच में फंसता था। To let be tempted मतलब लालच में आना। Don't let him be tempted, उसे लालच मत दो। And as soon as, और जैसे ही कोई इस लालच में फंसता था, इस लालच मतलब कौन सा? कपड़े का लालच, धन का लालच, भोजन का लालच, गर्मी का लालच, शेल्टर का लालच, इसमें कोई फंसता था, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वो वहीं का रह जाता था, फंस जाता था, बंध जाता था। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठता था। एवरीथिंग केम टू एन एंड मतलब सब कुछ समाप्त हो जाता था। अर्थात क्या समाप्त हो जाता था? उसकी स्वतंत्रता। आदमी की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी जब वो किसी से भोजन लेता था, किसी से धन ले लिया, किसी से थोड़ा सा मदद ले ली, किसी भी तरह की मदद, वो लालच ही तो है। लालच ही तो आदमी को मदद मांगने के लिए विवश करती है। इट इज द क्रेविंग फॉर वेल्थ, क्रेविंग फॉर कोल्ड शेल्टर, क्रेविंग फॉर मनी, फूड, दैट मेक्स द मैन लूज हिज फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो द पोएट, द ऑथर सेज थ्रू दिस सेलर, कि सेलर सोच रहा है मन ही मन कि ये दुनिया भी तो बहुत बड़ा ट्रैप है, रैट ट्रैप, जहाँ का आदमी, हर आदमी किसी न किसी बेट में फंस जाता है। और फिर वो बेट किस तरह के हैं मैंने बता दिया। और फिर ऐसा होने पर जैसे ही फंसता है उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरवाजे से मतलब है कोई लकड़ी का दरवाज़ा या लोहे का दरवाज़ा नहीं, दरवाज़ा मतलब स्वतंत्रता, जो फ्रीडम है उसकी वो समाप्त हो जाती है। वो उसी लालच में फंसा रहता है, उसी के पीछे दौड़ता रहता है, भोजन के पीछे दौड़ रहा है, पैसे के पीछे दौड़ रहा है, शरण के पीछे दौड़ रहा है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, भोजन मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद ये सीमा, इससे आनंद नहीं, और बेहतर आनंद, इससे भी नहीं, और बेहतर आनंद के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि छोटे से आयरन ट्रैप में चूहे को हम चीज़ और पॉर्क दे देते हैं और एक बार चूहा घुसता है, वो दरवाजा क्लोज्ड ऑन हिम, बंद हो जाता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों के पीछे भागते हुआ आदमी जो है वो एक तरीके से अपने को वो बंद हो गया। एंड लेट एवरीवन एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता। वो बस इसी दौड़ में पड़ा रहता, इसी के पीछे भागता रहता, भागता रहता, भागता रहता। यश, धन, आनंद, सुख, भोजन और ये सब चीज़ें, इसी के पीछे वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और ऐसा होने से क्या हो रहा है? वो उसका सब कुछ ख़त्म हो रहा है। द ऑथर सेज नाउ अगेन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम। काइंड मतलब दयालु, उदार, और काइंड मतलब वस्तु भी होता है, इन कैश और इन काइंड। I want something from you in return, in cash or in kind. So kind मतलब वस्तु भी होता है।
लेकिन यहाँ पर काइंड का अर्थ है दयालु, उदार। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम। दुनिया जो है कभी भी उस व्यक्ति के प्रति उदार नहीं रही। किस व्यक्ति के? रैट ट्रैप सेलर के प्रति उदार नहीं रहे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। और इसीलिए अनवांटेड जॉय, बहुत ज़्यादा उसको आनंद आ रहा था ये सोचते हुए, टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। दुनिया के बारे में इल माने बुरा, दुनिया के बारे में ऐसा बुरा सोचते हुए उसे एक तरीके का आनंद आ रहा था। अनवांटेड जॉय, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। क्यों आनंद आ रहा था? क्योंकि कभी भी दुनिया जो है उसके प्रति दयालु नहीं थी, काइंड नहीं रहे, उदार नहीं रहे। बेचारा सुबह से धक्का खाता था, रात भर भूखा रहता था, और भूखे रहने के अलावा गाल पिचक गए थे, थका रहता था, ये कोई जगह नहीं थी। तो इसीलिए उसके मन में ये विचार आया कि दुनिया भी तो ट्रैप है और ये सब उसी लालच में है, ये सब भी तो वैसे ही हैं, चूहे जैसे। यानी वो आदमियों को चूहे जैसा देखने लगा। सब आदमियों का व्यवहार चूहों जैसा है जो ट्रैप में फंस जाते हैं, और ऐसा सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुराया। और दैट इज़ वाई ही थॉट इल ऑफ देम, इसीलिए वो ऐसा बुरा सोचता था। इस तरीके से बुरा क्या कि सब आदमी जो हैं वो रैट ही हैं, और दुनिया जो है वो रैट ट्रैप है। तो उसके रैट ट्रैप सेलर के बुरे सोचने के पीछे क्या कारण था कि वह स्वयं खुद ही इस दुनिया में इतनी बुरी हालत में था और कोई उसके प्रति उदार नहीं था। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिम। चेरिश्ड मतलब बड़े लंबे समय से, बहुत अंदर तक उसका ये पास्ट टाइम हो गया। पास्ट टाइम मतलब समय काटने के लिए कोई चीज़, कोई गतिविधि। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट पास्ट टाइम। स्विमिंग जो है समय काटने के लिए, खाली समय में समय काटने के लिए मेरा सबसे प्रिय चीज़ है। नॉवेल रीडिंग इज़ माई फेवरेट पास्ट टाइम। वॉकिंग इज़ माई फेवरेट पास्ट टाइम। पैदल चलना, चलते रहना, ये खाली समय में मेरे लिए बहुत अच्छा एक पास्ट टाइम है, जिससे टाइम पास होता है। तो यहाँ पर द रैट ट्रैप सेलर, उसका एक लगातार एक ये सोच चलने लगी। अब इट बिकेम ए चेरिश्ड थिंकिंग, ए चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिम ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स। बहुत थकानदायक जब चलता, ड्रीरी मतलब निराश, उबाऊ, थकानदायक, बहुत थकाने वाली जो प्लॉडिंग्स थी। प्लॉडिंग मतलब धीरे धीरे चलना। तो थिंक ऑफ पीपल हु न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। अब ये उसकी एक आदत में आ गया। क्या? दुनिया को ट्रैप के बाद जैसा सोचते रहना, रैट ट्रैप जैसा सोचते रहना। और जब भी वो थका हारा हो, चल रहा हो, यहाँ वहाँ जा रहा हो, तो यही सोचना उसकी एक चेरिश्ड पास्ट टाइम हो गया। उसकी एक आदत में आ गया, ढल गया। इट इज़ माई चेरिश्ड ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर। इट इज़ माई चेरिश्ड ड्रीम टू टेक माई फादर ऑन ए फ्लाइट। ये मेरा एक लंबा सपना है कि मैं अपने पिताजी को फ्लाइट में एक बार ले जाऊं। इट इज़ माई चेरिश्ड ड्रीम। इट इज़ माई चेरिश्ड ड्रीम टू बी ए डॉक्टर। ये मेरा एक सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो चेरिश्ड मतलब आप समझिए बहुत तीव्र इच्छा वाला। सो इट वॉज हिज चेरिश्ड ड्रीम। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिम ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग। ड्रीरी मतलब थकान वाली, उबाऊ, नीरस। प्लॉडिंग्स चलना जैसा मैंने, टू प्लॉड मैंने टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू। ऐसे लोगों के बारे में सोचना जिनको वो जानता था। टू लेट think of the people who knew, who had let themselves to be caught in the dangerous snare, जो इस जाल में फंस गए हैं, इस खतरनाक जाल में, माया जाल में फंस गए हैं। धन की दौड़ में,
संपत्ति की दौड़ में, दौलत की दौड़ में, आनंद आमोद प्रमोद की दौड़ में, सुख की दौड़ में, इस दौड़ में जो फंस गए हैं उसके पहचान के लोग उनके बारे में सोचता था। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उनके बारे में भी सोचता था जो अभी भी जाल में नहीं फंसे हैं और बेट के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात बेट अभी उन्होंने पकड़ा नहीं है। जो भी लोभ है उस लोभ के पीछे अभी भागे नहीं हैं, लेकिन उसके आसपास मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ही न्यू तो मैनी ड्रीरी, जब बहुत थकान, मैनी जब चलता रहता था, घूमते रहता था, तो यही सोचता था, लोगों के बारे में सोचता था, ये लोग तो माया जाल में फंस गए हैं, बेट में फंस गए हैं। लोगों के बारे में सोचता रहता था, ये तो माया जाल में फंस गए हैं, बेट में फंस गए हैं। ऐसे बहुत से लोग जिनको वो जानता था, और साथ में एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेट। सर्कल राउंड मतलब घूमना, सर्कल माने चक्र, बेट के आसपास अभी भी मंडरा रहे हैं, बेट को छुआ नहीं है, अर्थात इसके पीछे अभी भाग नहीं रहे हैं, लेकिन उसके आसपास घूम रहे हैं। वो बार बार सोचता था उन लोगों के बारे में, जो लोग जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक फंदे में फंसने दिया। स्नेयर माने क्या? फंदा, स्नेयर, नीरस फंदे में। और अन्य लोगों के बारे में सोचता था जो चारे, इसे हम चारा ही तो कहेंगे, भोजन, मकान, सुख, ये चारे की तरह है जिसको खोज में चरागाह में जानवर चलते चला जाता है आगे आगे। तो ये सब चारा है आदमियों के लिए। भोजन के लालच में जो लोग अभी भी चक्कर लगा रहे हैं उनके बारे में भी सोचता था, दोनों के बारे में सोचता था और मुस्कुराता था, हंसता था। तो अब वो एक तो बेगिंग का काम कर रहा था, और चूंकि बेगिंग से पूरा गुजारा नहीं होता था, वो थोड़ी बहुत चोरी भी कर लेता था, लेकिन डकैती नहीं, छोटी मोटी चोरी। लेकिन क्योंकि दुनिया उसके प्रति बहुत कड़वी थी, नीरस थी, दुनिया से उसको कुछ मिला नहीं था, वो भी दुनिया के बारे में बुरा सोचने लगा। और यही सोचा कि ये दुनिया भी तो ट्रैप है, ये सब जो घूम रहे हैं ये लोग तो सब फंसे हुए लोग हैं जाल में, माया जाल में, चारे के चक्कर में ये लोग भटक रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। नाउ द स्टोरी टेक्स ए टर्न। अब ये पूरा आप समझ गए होंगे कि रैट ट्रैप कहानी में जो रैट ट्रैप सेलर है वो मेन कैरेक्टर है, और उसकी सोच क्या है ये आप समझ गए। किस सोच के साथ वो जी रहा है, बहुत तकलीफ में जी रहा है, बहुत दरिद्रता की ज़िंदगी है, बहुत कठिन ज़िंदगी है, कड़वाहट है, और दुनिया में लोगों को देख रहा है जिनके पास सुख है, जिनके पास साधन है, आमोद प्रमोद है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, लेकिन अब अपने को संतुष्ट करने के लिए भी शायद वो सोचने लगता है कि ये लोग भी वही रैट ट्रैप के चूहे जैसे हैं जो चारे के खोज में फंस गए हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। तो अब क्या होता है? नाउ वन डार्क इवनिंग as he was trudging along, one dark evening मतलब शाम जब ढल चुकी थी, अंधेरा अच्छा खासा हो गया था। He was trudging along, वो जब चल रहा था, भटक रहा था, along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside. Caught sight of, to catch माने पकड़ना, sight माने दृश्य। उसने एक दृश्य पकड़ा, ऐसा नहीं होता, ये भावार्थ इसका होगा टू कैच साइट ऑफ मतलब कुछ दिखाई दिया, टू कैच साइट ऑफ मतलब कुछ दिखाई देना। केवल साइट का मतलब होता है दृश्य, और टू कैच माने पकड़ना। तो उसने कुछ दृश्य पकड़ा, ये गलत हिंदी है, इसीलिए होगा उसने कुछ देखा।
क्या देखा? ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक ग्रे कलर का छोटा सा कॉटेज, मकान, रोड के किनारे बना हुआ। कब? जब वो बहुत थकान में चल रहा था, भटकता हुआ जा रहा। उसका तो कोई लक्ष्य नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उसको जाना है, नियमित शाम तक पहुँचना है। तो वो तो अपना बस चलते रहता था, और कोई मिल गया तो रेड ट्रैप खरीद लेता था, बेच देता था, और कुछ पैसे मिल गए तो उससे अपना खाने पीने की व्यवस्था कर लेता था। तो ऐसे ही भटकते हुए जो जा रहा था, उसे एक मकान दिखा और रात हो चली थी। Caught sight of a grey cottage and he knocked on the door to ask shelter for the night. And he knocked at the door. Knock करना मतलब खटखटाना। Then he knocked at my nose, और उसने मेरी नोज पे मारा। नॉकआउट होता है ना बॉक्सिंग में, नॉकआउट राउंड, जिसमें एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को ऐसा मारता है कि वो चारों खाने चित्त होकर गिर जाता। तो जो विजेता है वो नॉकआउट विजेता कहलाएगा, अर्थात उसने पॉइंट्स पे नहीं हराया, पूरी तरह पछाड़ा। तो नॉक कर देना, खटखटाना, और नॉक कर देना मतलब किसी को धराशायी कर देना, गिरा देना। तो यहाँ पर एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग ही नॉक्ड एट ए डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर फॉर द नाइट। शेल्टर मैंने बताया शरण लेना, और रात के शरण के लिए उसने पूछा, अर्थात किसी ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा, रात को क्या मुझे आप रहने दोगे? नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसे दरवाज़ा खोलने वाले ने मना नहीं किया। ही वॉज नॉट रिफ्यूज। नॉर कहाँ से बना? नॉर शब्द नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसे मना नहीं किया गया। NOR, नॉर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। किसके द्वारा? उस कॉटेज में जो रह रहा था, जिसने दरवाज़ा खोला नॉक करने पर।